Okay, so in last session we have studied about the formula. We have derived the expression for velocity, which is the safe velocity for a car on unbanked road surface. The safe velocity for a car on unbanked road surface, straight road surface like this, straight road surface. Now, okay, like this, straight road surface. Today we are going to discuss about the bike. Today we are going to discuss about the bike. Yesterday we have discussed about the car. Yesterday we have discussed about the safe speed for a car when it is traveling on unbanked road surface, that is straight road surface. When it, let's suppose this is a straight road surface, okay, and right turn is there. So at that time we have calculated the formula. Yes, what is the formula? V is equal to, yes, under root of mu rg. This is the formula for the safe speed that we have calculated in last session. So today we will discuss about the bicycle. Okay, bicycle or a motorcycle, motorcyclist. Okay, today we will discuss about the motorcyclist. Yes. So we will observe that when a bicycle or a motorcycle, when it runs on a unbanked road surface, unbanked road surface, आपने भी यू आपने भी कभी देखा होगा इस तरीके से, जब आप ड्राइविंग करते हो साइकिल और बाइसिकल, तब when you will going to take a turn, at that time you have to take inclination, you have to take an inclination with the vertical. We are not moving straight, we have to do some inclination. हमें क्या करना पड़ता है थोड़ा सा inclination लेना पड़ता है. देखते हो आप, जब कभी भी बाइसिकल और मोटरसाइकिल जब हम टर्निंग लेते हैं ऑन स्ट्रेट को रोड सरफेस, नॉट अ bank road surface, not a tilted road surface, on a straight road surface, at that time we have to tilt some by some angle. मी ऑब्झर्व केलं असेल, यू विल ऑब्झर्व दॅट आपल्याला काहीतरी अँगलने काय लागतं, थोडंफार टिल्टिंग व्हावं लागतं. बट व्हाय इट इज नेसेसरी? इन दिस फिगर यू विल ऑब्झर्व दॅट द टिल्टिंग ऑफ अ बाइसिकल, टिल्टिंग ऑफ बाइसिकल यहाँ पे विजिबल है, टिल्टिंग ऑफ बाइसिकल. व्हाई दे आर गोइंग टू डू दिस थिंग्स? क्यों जरूरी है ऐसा टिल्ट होना? अगर हम टिल्ट नहीं होते तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी, हमें क्या करना पड़ता है? ठीक है, अगर हम उसी वेलोसिटी से आ गए और अगर हमने टिल्ट नहीं किया, उसी एंगल से अगर हम टर्न कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, बराबर है, प्रैक्टिकल करके देखो. आपका बाइसिकल लो, टर्निंग तो आपके पास में है, ठीक है, सोसाइटी का रोड होगा, टर्निंग होगा, ठीक है, वहां पे जाके थोड़ा सा फास्ट स्पीड में जाने का, ठीक है, और टिल्टिंग नहीं करने का. टिल्ट नहीं होना तो क्या होता है बताऊंगा आपको. यू कांट टेक द टर्न, यू कांट टेक द दैट टर्न विथ easily. You will get skid, you will get skid, your bicycle will skid, okay, and it will thrown outside the road surface, outside the road surface. आप बाहर की तरफ खींचोगे, बाहर की तरफ आपका टिल्टिंग हो जाएगा, ठीक है. तो बाद में आपको पता है कि क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंट में, ओके, एक्सपेरिमेंट में क्या होगा आपको पता है. सो व्हाई इट इज नेसेसरी, और इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो उसी वे से हमें निकालना है, ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे. So let us calculate the formula for the safe speed for this bicycle so that he will tilt with some angle. और हम यहाँ पे फॉर्मूला वेलोसिटी का भी निकालें, और एक क्या फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, दैट इज थीटा. हमें कितने एंगल से झुकना चाहिए वर्टिकल के साथ में, ठीक है, हमें कितने एंगल से झुकना चाहिए, नीचे आना चाहिए वर्टिकल के साथ में, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं. दैट इज टिल्टिंग, बाय व्हाट एंगल यू हैव टू टिल्ट सो दैट you will safely turn that road, you will safely turn that road. So by what angle you have to tilt. देखो ये बाइसिकल राइडर थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, बराबर है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया विद द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लेट्स सपोज दिस इज वर्टिकल एक्सिस, थोड़ा सा टिल्ट हो गया. और एक एग्जांपल देखें तो, और एक एग्जांपल, लेट्स सपोज if you have the bike, if you are going to ride the bike, so बाइक के साथ में भी आप कर सकते हो स्ट्रेट रोड सरफेस पे, ये दिखेगा, okay, and on turning on unbanked road surface you will tilt by some angle with the vertical, with the vertical. So let us see what actually happens in this case.
ओके, ये तो डायग्राम बने। और एक डायग्राम है फ्री बॉडी डायग्राम, देखो ठीक है, बाइसिकल राइडर है, बराबर है। सो इस फ्री बॉडी डायग्राम में ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इट इज शोइंग इन दिस फिगर। जो भी फोर्सेस वहां पे लगेंगे वो यहाँ पे दिखा दिए हैं, बराबर है। देखो सुनाओ सबसे पहले, सो बाइसिकल एंड द वेट ऑफ द पर्सन, यहाँ पे जो भी ठीक है पर्सन होगा और एक बाइक है, बराबर है। बाइक का कंबाइंड वेट और बाइक प्लस और बाइसिकल प्लस पर्सन जो भी वेट रहेगा उसका कोई तो भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हम फिजिक्स में क्या कंसीडर करने वाले हैं, पॉइंट मास। एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वन कंसेप्ट, वहां पे सेंटर ऑफ मास इट इज ऑल्सो वन कंसेप्ट, बट वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें लेना है इसका पॉइंट मास। हम क्या कंसीडर करते हैं फिजिक्स में, एक कंप्लीट बॉडी इसका एक पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, बराबर है। पॉइंट मास बोलो कहाँ पे एक्ट होगा, वेट विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट के यहाँ पे एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। देन yes, by what angle it will take a turn, let's suppose it takes an angle theta, it takes an angle theta with the vertical, yes it takes an angle theta with the vertical। then यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिखाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द रोड surfaces, which is exerted by the road surfaces। now we will going to calculate that angle, okay, for the rider so that he can drive two-wheeler or bicycle very safely okay, so let us consider one example now. Let us consider one bicycle is going to take a turn on unbanked road surface, unbanked road surface, on unbanked road surface, okay। so let us start with the derivation now। सिचुएशन तो पता चलिए आपको क्या सिचुएशन है, ओके हमें क्या निकालना है, सिचुएशन तो पता है आपको अभी सब, ठीक है। सो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल देखा है व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिराइव एनी एक्सप्रेशन, यस व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिराइव एनी एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर है। क्वेश्चन पता है तो हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पहले डायग्राम देन कंसिडरेशन, ओके देन फाइनली सॉल्यूशन। स्टेट बोर्ड में दिया हुआ टॉपिक है, स्टेट बोर्ड का टॉपिक है, लेट्स सी इट इज द टॉपिक ऑफ स्टेट बोर्ड, ओके। क्वेश्चन लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, डिराइव एन एक्सप्रेशन, derive an expression for ओके क्वेश्चन यहाँ पे हमें कैसे बनाना पड़ेगा, देखो 2 मिनट। ओके सो derive an expression for an tilting angle, इसको इस तरीके से tilting angle, derive an expression for tilting angle for of two-wheeler, for a two-wheeler, for a two-wheeler rider on unbanked road surface। So derive an expression for a tilting angle for a two-wheeler rider और a bicycle भी बोल सकते हो आप, on unbanked road surface। road surface कैसा है, straight road surface, okay। so now
In this case, first of all, what you have to draw? Yes, first thing that we have to draw the diagram. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डायग्राम. So draw the diagram. ओके, यहाँ पे डायग्राम कैसे निकालनी है? तो डायग्राम हमें एक्चुअल में एज इट इज तो नहीं निकालनी है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सिस. ठीक है, निकालेंगे एक एक्सिस. एक्सिस, लेट्स सपोज दिस इज द vertical axis. Okay, and let's suppose this is the road surface. This is the road surface now. Okay, and let's suppose that rider it takes and turn with this angle. Okay, let's suppose this is the normal reactions which is offered in this. Okay, so this is the angle or the tilting angle of that bicycle or the rider. इस एंगल से वो टिल्ट हो रहा है और उसको हम लीन होना भी बोलेंगे. लीन हो रहा है विद द वर्टिकल. दिस इज द एंगल ऑफ टिल्टिंग ऑफ बाइसिकल और द राइडर. दैट एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा. ओके, सो लेट अस ड्रॉ वन बाइसिकल और द मोटरसाइकिल. एक बाइसिकल ड्रॉ कर लेते यहाँ पे. अभी एग्जैक्ट तो नहीं होगा. सो दिस इज द योर रोड. ये दिस इज योर रोड सरफेस. बराबर है. रोड सरफेस के कॉन्टेक्ट में क्या रहेगा? दैट इज योर, यस, draw karo simultaneously. This is your tire which is in contact with the road surface. This is the tire which is in contact with the road surface. Next, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रंट व्यू निकालने वाला हूँ. फ्रंट व्यू. सो फ्रंट, दिस इज द कंप्लीटली फ्रंट व्यू ऑफ दैट. ये टायर है. ठीक है, टायर. दिस इज द ग्रिपिंग ऑफ योर टायर नाउ. ओके, तो स्कूटर टाइप है. स्कूटर टाइप दिख रहा है. यस, माइक ऑफ करो. कोई तो भी माइक ऑफ करो. माइक चालू है किसी का? माइक ऑफ करो. माइक माइक ऑफ करो. ठीक है. Let's suppose this is the handle. Okay, now we will not draw the person which is driving this particular bicycle or a car. Bicycle जो भी हम ड्राई करो उसको नहीं निकालेंगे. Let's suppose this is the tilting of that particular motorcycle. tilting part. ठीक है. तो सबसे पहले पता है that is weight क्या होगा? weight जो लेंगे हम, weight which is acting in the vertically downward direction. weight कहाँ पे एक्ट होगा? which is acting in the vertically डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको कहाँ पे दिखाओगे? ठीक है, अभी इसको वेट जो भी होगा हम यहीं पे दिखाएंगे. वेट विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यस, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यस, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे होगा एक्चुअली. अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है वेक्टर का. सो वे एम जी इट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. Okay, now this is the vector which provide the normal reaction. ये जो भी red vector दिख रहा है ना, red vector, ठीक है, ये red vector. This is the red vector which is the, yes, red vector is the normal reaction offered by the road surface. This is the normal reactions offered by the road surface. That is capital N. N is the normal reaction offered by the road surface. Okay, let's suppose this is an angle theta. Clear? So यही आपको पता है. बराबर है. इस बाइसिकल का जो भी वेट है होगा वो एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड दिस इज द n. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज ऑफर्ड बाय दिस रोड सरफेस. नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज ऑफर्ड बाय द रोड सरफेस. ठीक है, एक्चुअल में वेट यहाँ पे होगा मगर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है तो हमने पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर अलाउड है तो यहाँ पे हमने mj लिया है. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिजॉल्व करने वाले हैं वेक्टर. यहाँ पे किया तो भी चलेगा. ठीक है, अगर किसी का, अगर तुमको चाहिए तो हम मैं भी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ. तो थोड़ा सा पेन डार्क करना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे हम मान लेते ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी बोलते हैं उसको. सीजी यानी कि क्या है? उसका कंप्लीट मास हम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार रहे हैं. कंप्लीट बॉडी का, पर्सन का, मोटरसाइकिल का, उसका स्टीयरिंग का, सभी पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं.
सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट कहाँ पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सो mg which is acting in the vertically downward direction, clear है. So normal reactions which is offered by the road surface which is in the yes vertically upward direction, clear. Now this particular normal reaction is makes an angle theta, बराबर है, it makes an angle theta with the vertical, it makes an angle theta with the vertical, it makes an angle theta with the vertical. So let's suppose this is the vertical axis that I will draw over here, ठीक है. So here black paint, mic off करा, mic off करा. So this is an angle theta, this is an angle theta, yes. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, पैरेलल एक्सिस से इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल एक्सिस है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा. ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा. सो नाउ वी हैव टू रिजॉल्व दिस नॉर्मल कंपोनेंट, जो भी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है उसे हमें रिजॉल्व करना है. कैसे रिजॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया है कैसे रिजॉल्व करते हैं. दैट इज जिस साइड पे एंगल थीटा है उसको क्या लेंगे, उस कंपोनेंट को हम क्या लेंगे, दैट इज n cos थीटा, उस कंपोनेंट को हम क्या लेंगे, दैट इज n cos थीटा. सो दिस कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, दिस कंपोनेंट विल बी n cos थीटा एंड यस दिस कंपोनेंट विल बी चलो बताओ, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज n sin theta. So you will get the two component here, that is n cos theta and this is the n sin theta. ये component क्या है तुम्हारा, n sin theta, बराबर है. So this is the component that we have resolved, the normal reactions we have resolved into orthogonal component n cos theta and n sin theta. Clear है, ठीक है. Now in this case यहाँ पे देखो, अभी मुझे बताओ दिस n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, बताओ जल्दी. n cos थीटा विल बैलेंस व्हाट, n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, यस n cos थीटा विल बैलेंस, n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, दैट इज mg. n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r वो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है. क्लियर है. देखो अभी कंसिडरेशन लिख लेते, इसका पूरा कंसिडरेशन नोट डाउन करो फास्ट नाउ. कंसिडरेशन, सो फर्स्ट डायग्राम हो गया, डायग्राम के बाद में आता है अपना कंसिडरेशन. क्या आता है, कंसिडरेशन. सो नोट डाउन कंसिडरेशन, डायग्राम बन गया. फर्स्ट सेक्शन डेरिवेशन का, सेक्शन सेकंड सेक्शन है कंसिडरेशन. कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करोगे तुम यहाँ पे, बोलो जल्दी फास्ट. कंसीडर लेट m, yes m is equal to mass of मोटरसाइकिल, मास ऑफ टू व्हीलर लिया है ना हमने, तो मास ऑफ टू व्हीलर जो भी दिया होगा उसको लेना है, ठीक है. मास ऑफ टू व्हीलर. नेक्स्ट और क्या है यहाँ पे, लेट सपोज v इज द वेलोसिटी, यस वेलोसिटी ऑफ टू व्हीलर, वेलोसिटी ऑफ टू व्हीलर. और क्या लेना है यहाँ पे, n इज द नॉर्मल रिएक्शन, n इज द नॉर्मल रिएक्शन. यस कौन ऑफर्ड करेगा, दिस इज ऑफर्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय रोड सरफेस, ठीक है, ऑफर्ड बाय रोड सरफेस. देन रोड सरफेस, देन mg, यस वेट ऑफ बाइक और टू व्हीलर, बराबर है. वेट ऑफ बाइक एक्टिंग, कहाँ पे एक्ट रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है. क्लियर है. देन क्या और क्या यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल जो भी दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे डायग्राम में, वो सभी वेरिएबल्स तुम्हें यहाँ पे कंसिडरेशन सेक्शन में लिखना है. सो वन मोर वेरिएबल इज रिमेनिंग, दैट इज थीटा. बोलो थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लिनेशन, यस inclination of bike, yes inclination of bike with the vertical axis, बराबर है. वर्टिकल एक्सिस के साथ में जो भी इंक्लिनेशन है वो है थीटा.
और कुछ बचा है यहाँ पे, mg हो गया, थीटा हो गया, n sin थीटा, n cos थीटा, दीज आर द कंपोनेंट्स दैट नीड नॉट टू बी, जो भी इनिशियल वेरिएबल हम लेते हैं वो हमें यहाँ पे पुट करना है। ओके, बाद में जो भी n cos थीटा वो तो हमने रिजॉल्व किया है। ओके, इस कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व किया है, फोर्स को, दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, उस पर फोर्स को हमने नॉर्मल कंपोनेंट में, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, क्योंकि हम इसके कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसको हम कैलकुलेशन में ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर अ स्टैटिक, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अभी ये वर्ड्स तो फिल नहीं होगा, ठीक है। सो कंसिडरेशन हो गया, अभी आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन बताओ जल्दी, फास्ट सॉल्यूशन, थर्ड सेक्शन। चलो सॉल्यूशन में बताओ हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अभी तो पहले इसको स्टडी करो, क्या हो रहा है देखो, टर्न कहाँ से ले रहा है, देखो डायग्राम को देखो, डायग्राम में देखो कहाँ पे टर्न कर रहा है बाइक, इधर इस डायरेक्शन में, देखो ऐसा बाइक है, ठीक है, इस तरीके वहां से आया, वहां से, ठीक है, यहाँ पे टर्न किया ऐसे, ठीक है, यहाँ से बाइक आया ऐसा, यहाँ पे टर्न किया, तो इसका मतलब मुझे बताओ रेडियस कहाँ पे, सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिख रहा है आपको सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो सर्कुलर मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, बराबर है। तो ये है तुम्हारा सर्कुलर मोशन का, बराबर है, सर्कुलर मोशन, तो ये तुम्हारा कुछ तो भी रेडियस होगा। सो वो मुझे बताओ, यस, सर्कल और एक दो तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे, सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बराबर है, सर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बराबर है, सर्कुलर मोशन, यस, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। सो इस बाइसिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा जो सेंटर की तरफ रहेगा, और एक तरीके से इसको बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा जो इसको आउटवर्ड खींचना चाहेगा, आउटवर्ड उसको स्किड करना चाहेगा, आउटवर्ड फेंकना चाहेगा, बराबर है, तो हम लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। ओके, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर बॉडी नाउ इट इज इन द सर्कुलर मोशन, सो वन फोर्स व्हिच इज ओके व्हिच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, जो एक फोर्स है वो सेंटर के अवे से, अवे यहाँ पे सेंटर अवे, सेंटर से अवे एक्ट हो रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, बराबर है। ये फोर्स कौन सा है बताओ मुझे, ये फोर्स कौन सा रहेगा बताओ, दिस फोर्स विल बी व्हाट, बाहर है ना, बाहर की तरफ है, तो वो क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है तो ये स्किड कर जाएगा, बराबर है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, दिस पर्टिकुलर n sin थीटा कंपोनेंट, कौन बैलेंस करेगा इसको, n sin थीटा कंपोनेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है तुम्हारा, mv²/r, ठीक है, कौन बैलेंस करेगा, n sin थीटा, बराबर है, यस, इक्विलिब्रियम रहने के लिए कौन किसको बैलेंस करेगा, ओके, ये बॉडी स्किड नहीं होनी चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, बराबर है, कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होना चाहिए, तो सभी फोर्सेस एट दैट टाइम बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाके वो स्किड नहीं होगी। अगर एक भी फोर्स यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, देखो दैट्स वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, n sin थीटा कम हो गया, फिर भी बाइक स्किड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल, ये तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं, n cos थीटा ज्यादा पॉसिबल ही नहीं, वो ज्यादा नहीं हो सकता है, क्लियर है, वो ज्यादा होगा, एक्सीडेंट होने के बाद में आप ऊपर जाओगे, n एक्चुअली है क्या, फोर्सेस क्या है एक्चुअली, n cos थीटा तुम बाइक को ऊपर ले रहा है, बराबर है, mg बाइक को नीचे ला रहा है, ध्यान में रखो, n cos थीटा क्या रहा है, क्या कर रहा है, बाइक को ऊपर खींच रहा है, mg बाइक को डाउनवर्ड ला रहा है, n sin थीटा जो है बाइक को अंदर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाइक को बाहर की तरफ खींच रहा है, बराबर है। हमें क्या चाहिए, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, इसके लिए हमें सभी फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, तो यानी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mg से नहीं बैलेंस कर सकते ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, उसका पैरेलल कंपोनेंट ही बैलेंस करेगा ना, n cos थीटा इसको बैलेंस करेगा क्या, नहीं, उसका पैरेलल कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो इसीलिए हम क्या लिखने वाले अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। सो हियर बताओ अभी फास्ट, हियर यस, दैट n sin थीटा, डायरेक्टली बता दो, n sin थीटा बैलेंस किसको बैलेंस करेगा, बताओ जल्दी, इट बैलेंस व्हाट, centrifugal force, it balances the centrifugal, it balances the centrifugal force, बराबर है। नेक्स्ट therefore n sin थीटा क्या बन जाएगा, n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और
मुझे बताओ n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस करने वाला है। n cos थीटा बैलेंस द वेट ऑफ व्हीकल। किसको बैलेंस करेगा? n cos थीटा बैलेंस द वेट ऑफ व्हीकल, जो भी है यहाँ पे क्या है, बाइक है यार, मोटरसाइकिल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ क्लियर है यहाँ पे। सो n cos थीटा इक्वेशन 2 यू विल गेट हियर, n cos थीटा इज इक्वल टू mv square by r। n cos theta क्या आएगा? mg। n cos theta will be is equal to mg। so equation number 2, equation number 2, note down it, करो नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन करो। क्लियर है? किया है नोट डाउन? नाउ आई विल इरेज द कंसीडरेशन सेक्शन, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। मास ऑफ द व्हीकल लिखा है ना, otherwise take quick screenshot now। 10 minutes is remaining, okay, not an issue। सो हमें एंगल निकालना है किसको? ये एंगल निकालना है थीटा, कितने एंगल से लीन होना चाहिए उसने, कितने एंगल से टिल्ट करना चाहिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ में, ठीक है। सो बताओ अभी मुझे क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम डायरेक्टली लेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएंगे? देखो यहाँ पे, ओके, डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 1 एंड 2 लिखा तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लिख भी सकते हो डिवाइड। अभी आप 10th में नहीं हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन पर, that is n sin theta divided by n cos theta is equal to mv square by r divided by क्या आ जाएगा? mg। so क्या कैंसिल होगा बताओ? that is n get cancel, m get cancel, so क्या मिलेगा इधर बताओ जल्दी, क्या मिलेगा? sin theta by cos theta, that is tan theta is equal to v square by r, नीचे आ जाएगा, so v square by rg। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी भी निकालना है और एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं। क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टिल्टिंग एंगल। तो टिल्टिंग एंगल बोले तो हमें क्या निकालना है? थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। सो यहां से तुम्हें मिल जाएगा इंक्लिनेशन, ठीक है, यहां से मिल जाएगा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मिलेगा थीटा, okay, theta is equal to tan inverse of v square by rg। very important formula, one more formula is there now, बघा फॉर्मुले वाढत आहेत, नोट डाउन करत चला फॉर्मुले, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला तुमको? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। क्या इंक्लिनेशन है? सो अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है, अभी देखो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ बाइक और मोटरसाइकिल इज 40 km per hour, and if take a turns with a radius of 5 meter, what should be the inclination so that the bicycle should not skid? bicycle skid नहीं होने चाहिए, इसके लिए उसका इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए? थीटा पूछा जाता है। कुछ नहीं, एक टर्म अननोन रहती है, न्यूमेरिकल यानी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, तुम्हें कंसेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। if you know the concept, then you can easily solve the numerical and any MCQ, but the fundamental should be very clear। ओके, क्या क्वेश्चन पूछना, क्या पूछेगा? वेलोसिटी पूछेगा, नहीं तो रेडियस पूछेगा, जी तो नहीं पूछता है कभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी पूछेगा, क्या क्या अननोन क्वांटिटी है, दैट इज थीटा, मोस्ट ऑफ द टाइम थीटा ही पूछेगा। ओके, हर एक फॉर्मूले में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कौन सी तो भी टर्म अननोन रहती है, और एमएसटी सीटी जेडब्ल्यू नीट सभी इसी फॉर्मेट में रहता है, ऐसा कोई नया नहीं रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल नीट और जेडब्ल्यू में ज्यादा रहता है, एमएसटी सीटी वैसा कोई नहीं है, दूसरी को है तो कभी कभार तो वही क्वेश्चंस पूछते हैं एमएसटी सीटी में। So theta is equal to tan inverse of v square by rg। So this is the required angle। तुम बोल finally तुम क्या बोलोगे? This is the required angle, okay, for so that the bicycle should not be skid और motorcycle should not skid। मिल जाएगा, एक्सप्रेशन नोट्स में लिखा हुआ है और तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आगे अगर तुम्हें वहां पे वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है, बराबर है, लेट सपोज मोटरसाइकिल टेक्स एन टर्न ऑफ 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी? सो सेफ वेलोसिटी क्या होगी? चलो कैलकुलेट कर सकते हो सेफ वेलोसिटी का। सो कुछ नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, क्या आ जाएगा? rg tan थीटा। सो चलो नोट डाउन करो फास्ट। सो देयरफॉर थीटा का एक एक्सप्रेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? rg tan थीटा,
ठीक है। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ दैट मोटरसाइकिल मूविंग ऑन अनबैंक रोड सरफेस। किसके लिए? अनबैंक रोड सरफेस के लिए, ठीक है। सो दैट इट शुड नॉट स्कीड। नोट डाउन करो फास्ट। ठीक है, ओके डन। चलो नोट डाउन करो फास्ट जल्दी। फाइनली अगर तुम्हें क्या लिखना है, फाइनल आंसर देखो, ठीक है। फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, रेड पेन में, ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। देखो, therefore rider should bend और tilt भी बोल सकते हैं, ठीक है, और tilt through an angle theta is equal to tan inverse of v square by rg। very very important relation, very very important relation। हो गया। So now it's time for the significance। Now it's time for the significance। क्लियर है? नोट डाउन किया है? अभी देखो सिग्निफिकेंस क्या है। सो करो, इरेज करता हूँ, ठीक है। नाउ हियर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? यस, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड है। तुम वेलोसिटी बढ़ा सकते हो, मगर अगर तुम्हें टर्न लेना है, बराबर एक शार्प टर्न लेना है, आपको पता होगा, अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया था। देखो, अगर कोई बाइसिकल और राइडर है, यहाँ पे देखो, बहुत फास्ट स्पीड से आते, बहुत ज्यादा स्पीड से आते, तो आपको पता है बाइसिकल और राइडर क्या करते हो? ओके, ज्यादा फास्ट आते, बहुत ज्यादा फास्ट आते, इसका मतलब क्या है? ओके, वेलोसिटी क्या रहेंगी? बहुत ज्यादा रहती है वेलोसिटी। इज इट विजिबल टू यू? इज इट विजिबल? देखो यार, देखो यार, बाइसिकल, रेसिंग बाइसिकल में ना, रेसर पता है ना, बहुत फास्ट आते हैं। बाइकर्स और द बाइसिकलिस्ट आर मूविंग वेरी फास्ट। इसका मतलब उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, बराबर है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा? दैट इज वेलोसिटी इज हाइयर, वेलोसिटी इज हाइयर, वेलोसिटी इज हाई, बराबर है। तो उनको बचाना चाहिए हमें। किससे बचाना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाना है, बराबर है। किससे बचाना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाना है, सो दैट इट शुड नॉट स्किड। सो हमें बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दैट v इज इक्वल टू, अभी लिखा है हमने, क्या फॉर्मूला है v का? चलो, v इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, बराबर है। यानी कि v तुम्हें अगर बढ़ाना है तो तुम्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा? थीटा बढ़ाना पड़ेगा। थीटा बढ़ाना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? यस, वर्टिकल के साथ में ज्यादा से ज्यादा इंक्लिनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि वो देखो यहाँ पे, अगर v बढ़ता है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रूट टेन थीटा एक्चुअली, बराबर है, टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा भी बढ़ना चाहिए, तभी जाके तुम क्या बढ़ा सकते हो? दैट इज v। अब टेन थीटा, जैसे हमने बोला है टेन 20 डिग्री, बराबर है, अगर हम लेते हैं दैट इज टेन जीरो, तो जीरो होता है, बराबर है। टेन अगर तुम वर्टिकल सीधे रहो तो तुम्हें वो ओके, दैट मच इट इज नॉट इफिशिएंट। सो टेन अगर हम यहाँ पे 20 कर देते हैं तो टेन 20 कितना आता है पता है आपको? टेन 20 डिग्री। यस, इट इज नियर अबाउट,
it is near about, that is tan 20 degree, tan 20 degree, it is near about 0.36 बराबर है। अगर मैं tan 30 करता हूँ यहाँ पे तो हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज 0.57, 0.57 tan 30 डिग्री। यानी मैं जैसे एंगल बढ़ा रहा हूँ वैसे ये एंगल क्या हो रहा है, ठीक है, ये tan थीटा कंप्लीट कंपोनेंट क्या है, बढ़ रहा है। जैसे थीटा बढ़ा रहा हूँ कंपोनेंट बढ़ रहा है, सो यू कैन इंक्रीज द वेलोसिटी, बराबर है। सो इसके और एक तरीके से हम बोल सकते हैं, मुझे अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो मुझे इंक्लिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला है, अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है, सपोज आई हैव टू कीप द वेलोसिटी वेरी हाई, देन एट दैट टाइम ओके दैट थीटा शुड बी मोर, थीटा शुड बी मोर, थीटा को तुम वही